Hello everyone, welcome to the Manulo classes. In the session of daily news analysis, today is 12th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise our today's session, previous day session with the help of MCQs. So first of all, start with the question number 1. In the last session, we discussed some points regarding electoral bond scheme. And the point was that there were around 20 companies which were not enough old to purchase electoral bonds and to donate to political parties as a political donation, because the government of India, when introduced the electoral bond scheme, there was also a provision that the companies uh, required to be registered at least few years ago, so they can qualify to uh, purchase the electoral bond to political donation. So first question is asking that the scheme was introduced in which year. So guys, just try to answer the question before I provide you the correct answer. The correct answer is C, that is 2018. So guys, the electoral bond scheme was introduced in 2018. So I request you and suggest you that try to uh, have some Google research or attend our daily news analysis sessions, so you can understand some basic points regarding this scheme, because this scheme is in limelight, and you can expect some questions from this scheme, because this scheme was declared as unconstitutional by the Supreme Court of India. To purchase electoral bonds and give political donation, a company must be how many years old? तो किसी भी कंपनी को पॉलिटिकल डोनेशन देने के लिए, टू परचेज पॉलिटिकल या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज करने के लिए एक टाइम लिमिट लगी हुई है कि उतने ईयर पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर कैन बी, just reply the answer. The question is, the correct answer is C, that is 3 years. So any company which want to purchase political bonds, there was a restriction that it must be at least 3 years old. So कोई भी कंपनी कम से कम 3 years अगो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अगर उसको पॉलिटिकल बॉन्ड परचेज करना था. इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी बताया था. अदरवाइज क्या करेगा, किसी के पास में बहुत सारा मनी है और उसको जो है डोनेशन देना है, तो फिर वो क्या करेगा, रिसेंटली 2 दिन पहले किसी कंपनी को रजिस्टर कराएगा और पॉलिटिकल बॉन्ड परचेज कर लेगा, है ना. तो ऐसे करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी ये वाला जो है प्रोविजन रखा गया था. द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग. तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को सर्च करना है. देखो इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है. सो काइंडली फोकस ऑन सच काइंड ऑफ इंडिकेटिव वर्ड्स. जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी बोथ आर सेम. नेक्स्ट इज दी judicial custody means the accused is in the custody of the court. Police custody means the accused in the physical custody of police. The accused is safer in judicial custody than the police custody. Guys, actually the 3 statements are correct, because जुडिशियल जो कस्टडी होती है वो कोर्ट के अंडर में होती है, कोर्ट इसको ग्रांट करते हैं, और जो अक्यूज होता है वो किसी प्रिजन में, किसी जेल में उसको रखा जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पुलिस कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी में जो फिजिकल कस्टडी होती है वो पुलिस के पास में होती है. इट मींस जो पर्सन होता है, अक्यूज होता है, वो पुलिस के लॉकअप में होता है, किसी पुलिस स्टेशन में होता है. तो अक्यूज्ड इज सेफर इन जुडिशियल कस्टडी देन द पुलिस कस्टडी. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. व्हाई? बिकॉज जब भी किसी अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की जाती है तो उसका सारा मेडिकल चेकअप वगैरह रहता है और उसको जेल में रखा जाता है.
लेकिन जब किसी की पुलिस कस्टडी होती है, हालांकि पुलिस कस्टडी एक तो वो होती है कि जो उसको कोर्ट ग्रांट करता है पुलिस कस्टडी, एक वो होती है कि पुलिस पहले ही उसको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, सपोज करो पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को 10th ऑफ अप्रैल को, लेकिन जब कोर्ट में उसको अपीयर कराया जाएगा और बताया जाएगा तो दिखाया जाएगा कि उसको अरेस्ट किया गया था 12th ऑफ अप्रैल को। अब इन 2 दिनों के बीच में उसके साथ में कितना सारा टॉर्चर हुआ, मारपीट हुई है ना, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, तो वो तो दिखता ही नहीं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो दिखेगा ही नहीं। तो चोट अगर इस दौरान में कोई आएंगी तो जब 12th ऑफ अप्रैल का वो अरेस्ट दिखाएंगे पुलिस वाले, तो वो क्या करेंगे, मेडिकल कराएंगे फिर वो अरेस्ट करने के टाइम पे। तो मेडिकल में पहले से ही जो 2 दिन पहले जो टॉर्चर हुआ है वो चीजें तो दिखेंगी ही, है ना। तो इट मीन्स पुलिस ये कह देगी कि नहीं ये तो पहले से ही इनके शरीर पर चोट थी। ठीक है, तो इस तरीके से बचाने के लिए ही हमारे पास में ऑप्शन होता है जुडिशियल कस्टडी का। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू हैव to avoid the police torture, then the accused must be granted judicial custody. Now, next we are talking about question number 4. Who is the first chief minister of a state or union territory which did not resign even living in jail? जेल में रहते हुए भी कौन सा ऐसा भाई चीफ मिनिस्टर हैं या थे जिन्होंने रिजाइन नहीं किया और इवन वो फिर उस पद पर बने रहे अपने चीफ मिनिस्टर के पद पर? तो मायावती जो चीफ मिनिस्टर थी यूपी की, अरविंद केजरीवाल दिल्ली, सत्येंद्र जैन और राहुल गांधी, देखो ये दोनों तो चीफ मिनिस्टर कभी रहे ही नहीं, नोबडी। मायावती चीफ मिनिस्टर रही लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल इनके साथ में कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। हाँ, अरविंद केजरीवाल इज द ओनली चीफ मिनिस्टर इन इंडिया अब तक की हिस्ट्री में जो जेल भी गए लेकिन एज अ सीएम अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 5, find the incorrect statement. A. The voters have the right to know every minute details of the election contesting candidate. या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड करना है। तो क्या देखो, जो वोटर होते हैं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है इस पर, उसके रिगार्डिंग हमने इस पर डिस्कशन भी किया था जो प्रीवियस डे सेशन में। तो आप यहाँ पाएंगे कि कोर्ट ने मना कर दिया कि देखो अगर आप वोटर हैं तो किसी कैंडिडेट की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या इलेक्शन में जो है मींस विक्ट्री उसकी हो चुकी है, तो आपको ये राइट नहीं है कि आप उसकी एवरी माइन्यूट डिटेल जान सकें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। फिर द वोटर्स हैव द राइट टू नो मच डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट बट नॉट एवरीथिंग। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या बहुत सारी डिटेल उसकी मांग सकते हैं बट नॉट एवरीथिंग। आप उसकी एवरीथिंग तो आप पता नहीं कर सकते कि भाई वो कौन से कलर के कपड़े कब पहनेगा, या उसके बच्चे का नाम क्या है, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, बच्चे का रोल नंबर क्या है, ये सब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द वोटर्स राइट टू नो द डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट इज नॉट एब्सोल्यूट। यस, तो वोटर का जो राइट है टू नो डिटेल्स अबाउट द इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। मीन्स जो वोटर का राइट है कि वो कैंडिडेट के बारे में कुछ डिटेल्स जाने, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मीन्स जो लॉ है जितना उसमें परमिशन दी गई है बस उतनी ही डिटेल्स वो मांग सकता है, अनलिमिटेड डिटेल नहीं मांग सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द राइट ऑफ द वोटर एंड द प्राइवेसी ऑफ द इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट both should be in balance. Yes, this statement is also correct because जहां पर जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो वोटर की इंफॉर्मेशन हो या कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन हो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों की ही इंफॉर्मेशन की एक वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होता है। सो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अनलिमिटेड राइट उसको दे दिया जाए। सो बोथ थिंग्स शुड बी इन बैलेंस, बैलेंस में उनको होना चाहिए, तब जो है माना जाएगा। तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन था, द फर्स्ट ऑप्शन वाज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गॉड पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज। लास्ट सेशन में हमने गॉड पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था, तो ये इसको हम और किस नाम से जानते हैं, जीसस क्रिस्ट या अल्लाह या हिग्स बोसोन या अनदर नेम ऑफ गॉड? नो, देखो करेक्ट आंसर है इसका हिग्स बोसोन।
तो गॉड पार्टिकल को ना तो हम जीसस क्रिस्ट या अल्लाह या भगवान का दूसरा नाम, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसोन इसका अनोदर नेम है। जो पीटर हिग्स थे उन्होंने इस पर रिसर्च करके इसका ये नेम यूज किया था, तो ये उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर बात हो रही है। रिसेंटली पीटर हिग्स वॉज पास्ड अवे, तो ही बिलोंग टू विच कंट्री, कौन से देश के थे ये, इनका अभी रिसेंटली जो है निधन हुआ, पास हो गए। तो ये कौन से थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान। सो गाइज द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। अभी रिसेंटली जो है इनकी जब डेथ हुई है तो ये ब्रिटेन के नागरिक थे, वहीं पर इनकी स्टडी वगैरह सब कुछ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो मिस्टर पीटर हिग्स गॉट द नोबेल प्राइज इन 2013 इन द फील्ड ऑफ। तो ये जो पीटर हिग्स हैं, इन्होंने जो हिग्स बोसोन जिसकी हम बात करते हैं या गॉड पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, तो इस पर जब इन्होंने रिसर्च किया तो ही वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज। तो किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री। सो इट वॉज अवार्डेड इन फिजिक्स में जो है इनको अवार्ड दिया गया था। व्हाट इज सर्न? सर्न क्या है? बिकॉज आपको पता होगा कि गॉड पार्टिकल के रिसर्च के लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई थी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर, और इसी का नाम है आपका सर्न। तो क्या है ये? यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यही इसका करेक्ट नेम है। और ये बनाई गई थी करीब 27 किलोमीटर लॉन्ग एक टनल बनाई गई थी अर्थ के अंदर, और वहां पर जो है जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम गॉड पार्टिकल भी कह रहे हैं, उस पर रिसर्च इन्होंने किया था, और इनका काम था कि इस यूनिवर्स का कैसे क्रिएशन हुआ। सो टुडेज करंट अफेयर्स की तरफ हम चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास में है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एडीबी प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन 2024-25 एट 7%। एडीबी ने प्रोजेक्ट किया है, मींस जो है प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है आने वाले 24-25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 7% रहने वाली है। तो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है एडीबी क्या है। तो देखो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब आप देखो कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इन सारी न्यूज के बारे में, तो एडीबी से आपके लिए क्वेश्चन होगा कि एडीबी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है ना, और कितनी इन्होंने हमारी जीडीपी का जो है प्रोजेक्शन किया है और किस ईयर के लिए किया है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से बनेंगे आपके लिए। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं, जब इन्होंने जीडीपी की बात की है तो इन्होंने कहा है कि इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट, मीन बहुत अच्छी हमारी इकोनॉमी रहने वाली है, भले ही जो हमारा जो हेडलाइन ग्रोथ है जीडीपी की वो थोड़ी हमें ठीक ठाक भले ही ना लग रही हो, हालांकि वो 7.6% पहले रही, लेकिन इस बार वो 7% या 7.2% रहने वाली है, ठीक है। तो ये जीडीपी क्या है और उसमें हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। जब हम हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें मींस जो रॉ डेटा होता है ना, उसमें इन्फ्लेशन वगैरह को एडजस्ट नहीं किया जाता, तो उसी को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन या हेडलाइन जीडीपी बोल देते हैं, जैसे भी टर्म में उसको यूज किया गया हो। तो ये सब डेटा हमको कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में ऐसा बोल रही है, ठीक है। अब यहीं पर हमारे लिए कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी है क्या, है ना। जब बार बार बात होती है हम डिबेट्स में उनमें देखते हैं कि भाई इंडिया की जीडीपी इतनी है उतनी है, कांग्रेस के समय उतनी थी, है ना। तो जीडीपी का मतलब होता है कि किसी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, इसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री मान लेते हैं इंडिया की, तो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री, चाहे वो कोई कंट्री हो, कोई स्टेट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड, मीन्स हमने मान लिया इसको 1 ईयर, टोटल monetary value, total monetary value of goods and services, इनकी फाइनल स्टेज जो होती है, फाइनल प्रोडक्शन की फाइनल लेवल की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका टोटल जो निकाल लिया जाता है विद इन 1 ईयर या और कोई टाइम अगर मांगे तो, और किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह की रिगार्डिंग में, तो उसी को बोलते हैं हम जीडीपी, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के अंदर मींस किसी कंट्री के अंदर उसमें कितना प्रोडक्शन उन्होंने सर्विसेज का और गुड्स का किया, ठीक है।
प्लस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो आने वाले टाइम में मानसून भी हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, तो मानसून की वजह से भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल सकती है ना। ये उससे क्यों, इसका क्या लिंक है, इसका लिंक ये है कि जब मानसून अच्छा होता है तो जो फार्मर्स हैं, देखो आपको पता होगा कि इंडिया में अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और फार्मिंग करती है, एग्रीकल्चर का इकोनॉमी हमारी अभी भी है। तो जब मानसून अच्छा होता है तो जो क्रॉप्स होती है वो ठीक से उनका प्रोडक्शन भी होता है, उनकी प्रोडक्ट बढ़ता है। अब जो फार्मर्स है उनकी इनकम किससे आती है, क्रॉप से। तो जब फार्मर की अकाउंट में पैसा होगा, उनके जेब में पैसा होगा, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे और चीजें परचेज करेंगे, और मार्केट से गुड्स परचेज करेंगे, सर्विसेज परचेज करेंगे, तो क्या बढ़ेगी, फिर मार्केट में बढ़ेगी डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। ये रिलेशन है मानसून के साथ में। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं, तो ये हमारे पास में इन फर्स्ट इन 40 इयर्स इंडियन फिल्म टू कम्पीट फॉर केन्स अवार्ड। अभी जो फ्रांस का जो फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, हमारे 40 इयर्स की हिस्ट्री में, अभी अगर लास्ट 40 इयर्स को देखें तो पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की कोई फिल्म उस कंपटीशन में जो है उसको देखा जाएगा या उसको स्क्रीन पर प्ले किया जाएगा एज ए कॉम्पिटिटर। अदरवाइज लास्ट 40 इयर्स में हमारी कोई ऐसी मूवी नहीं रही जिसको इस इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में उसको स्क्रीन पर चला करके कम से कम कंपटीशन में शामिल किया जाए। देखो अवार्ड को विन करना तो बात की बात है, कम से कम पहले हम उस कंपटीशन तक पहुंचे तो थे। तो ये एक मूवी है जिसको डायरेक्ट किया, लिखा कौन है, पायल कपाड़िया, और मूवी का नेम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, है ना। ये एक मूवी है, इन्होंने जो है इन्हीं के अंडर जो है निर्देशन में इस पर सारा काम हुआ है, तो ये बड़ी बात है। तो इस मूवी का आपको नाम ध्यान रखा हुआ। अभी अगर हम बात करें तो लास्ट 40 इयर्स में हमारे साथ में, हमारे पास में अगर कुछ है, ठीक है, तो एक ही है, वो हमारी एक मूवी रही थी, दैट इज खारिज, ये 1983 में, और इसको डायरेक्ट किया था मृणाल सेन। तो इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, और अब तक के इतिहास में 40 इयर्स में केवल एक ही फिल्म ने जो है कंपटीशन में जो आई थी, हालांकि फाइनल तक तो ये नहीं पहुंची कि फाइनल अवार्ड इनको मिला हो। तो कल हम इससे और भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया की ऐसी कौन सी फर्स्ट मूवी थी जिसको इस केन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, और ये कहाँ पर होता है, ये फ्रांस में होता है, ठीक है। बाकी और डिटेल में हम कल क्वेश्चन बनाएंगे, तब इसको और बता देंगे। मेटा जो है, मेटा मीन्स फेसबुक। अब यहाँ से देखो फेसबुक ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा अब इन्होंने यूज किया है, करना स्टार्ट कर चुके हैं। किसको कंट्रोल करने के लिए, सेक्सटॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज सेक्सटॉर्शन, तो देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, है ना, उनका क्या होता है, कई बार उनको साइबर बुली उनके साथ में किया जाता है। उन बच्चों की मीन्स, या जो टीनेजर्स होते हैं, उनकी न्यूड पिक्स वगैरह ले ली जाती हैं, उनके वीडियो बना लिए जाते हैं, है ना। तो उसकी तरीके से उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए फेसबुक क्या यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। यदि फेसबुक पर ऐसा कोई भी वीडियो होगा, इमेज होगी जिसमें न्यूडिटी होगी, नग्नता होगी, उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और ऐसी किसी भी चीज को ब्लॉक कर देगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट एक और है, हाइड्रेशन इज की टू बीट द हीट एज मर्करी राइजेस इन समर। यू नो कि अभी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड की तुलना करें तो हम, ठीक है, स्टार्टिंग में केवल हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू समर सीजन। तो इस पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी अपनी एडवाइजरी रिलीज की है कि भाई देखो, जो छोटे बच्चे हैं या जिनको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, वो क्या करें कि 11 AM से लेकर के और शाम को 3:30 तक कहाँ ना जाएं, बाहर ना जाएं, धूप में ना जाएं, जो कमजोर है, बिकॉज उनको क्या लग सकता है, हीट स्ट्रोक उनको हो सकता है, उनको हीट वेव लग सकती है, हीट वेव, है ना, गरम गरम हवा। अब इंडिया में इन गर्म हवाओं को कहा जाता है लू, और लू क्या है, एक लोकल विंड है ना, लोकल विंड है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है एवरी समर सीजन में। तो जैसे इंडिया में पॉपुलर है लू, वैसे ही वर्ल्ड में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां पर भी ऐसी कुछ जो है विंड्स चलती हैं, कुछ उसमें से कोल्ड होती हैं, कुछ हॉट होती हैं। तो एक और विंड है जैसे जिसका नाम है चिनूक,
कल पूछूंगा मैं कि ये चिनूक कहाँ पर है, ठीक है, चिनूक है, फोन है ना, ऐसी कई सारी विंड्स हैं। इनमें से मैं दो का नाम कल आपसे पूछूंगा कि ये कौन से कंट्री में है या किस रीजन में ये चलती है, कौन सी इनमें से गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कल हमसे वहां पे आस्क करने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप गूगल करके रखिएगा। एक नया इनिशिएटिव, मैं आपको कुछ कुछ इमेज शो किया करूंगा और आप बताएंगे या मेरे को कमेंट बॉक्स में कि ये इमेज किसकी है। अब मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ, ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जो है एक स्लोगन दिया था और वो था क्या, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। ये स्लोगन इन्होंने दिया था और उस समय पर ये काफ़ी मीन्स बड़े लीडर थे और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज उसकी भी स्थापना की थी। जापान और जर्मनी वगैरह उनके साथ में मिल करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो आप मुझे बताइए कि ये किस लीडर की इमेज है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, तो आप बता दीजिए, कल के क्वेश्चन में हम इसका आंसर भी दे देंगे कल के सेशन में। सो गाइज, वी आर एंडिंग फॉर टुडे सेशन। सो गुड बाय, टेक केयर एंड बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।